اور جو سیاسی تاریخ ہے اس کا 76 سال میں دوسری دفعہ سب سے سیاہ چہرہ سامنے آیا ہے۔ پہلا 10 مارچ 1970 تھا اور دوسرا 9 فروری 2024 کو چہرہ سامنے آیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں قوم نے قیدی نمبر 804 کو مینڈیٹ دیا۔ کراچی کا سارا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور بلوچستان کا سارا مینڈیٹ جن کو ملنا چاہیے تھا وہاں لوکل پارٹیز، نیشنلسٹ پارٹیز اور پاکستان تحریک انصاف ان سے چوری نہیں کیا گیا، ڈکیتی ماری گئی ہے۔ یہ پارلیمانی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہے اور سب سے طویل دھاندلی ہے۔ طویل اس لیے کہ آج 2 ہفتے گزر گئے الیکشن ہوئے تقریباً، تو ابھی تک دھاندلی جاری ہے، ابھی تک رزلٹ نہیں آیا۔ دنیا میں مذاق بنا دیا گیا ہے اور لوگوں تک سچ پہنچنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ کل امریکن گورنمنٹ پھر بولی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے اس وقت دھاندلی کا ایک طرز عمل جس کے ذریعے سے آپ نے جتنے بھی پاکستان کے اندر ذرائع ہیں، جو ذرائع ابلاغ ہیں، اظہار رائے کی، آزادی کی، پریس فریڈم کے جو ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ذرائع وہ بند کیے گئے ہیں۔ ٹویٹر بند کیا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اختلافی آوازیں نہ پہنچیں۔ اسی لیے جسٹس عقیل عباسی جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی بہت اگر گیس نکل رہی ہے، سٹیم نکل رہی ہے تو پریشر کوکر سے سیٹی بج رہی ہے، اس کو مت روکو۔ یعنی پاکستان میں بولنے کی گنجائش بہت کم ہے اور اگر بولتے رہے آپ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف سرکاری سچ لوگ نہیں سنیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پریشر کوکر دھماکے سے پھٹے گا، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ اس سے اچھے طریقے سے اور پاکستان میں جو بگڑتی ہوئی اور ابتر صورتحال ہے اس گڑے سلے نظام کے نیچے سے اور اس فرسودہ نظام کے نیچے سے اور اس بےہودہ نظام کے نیچے سے جس کے ذریعے سے چوری کیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ، اور چوری ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ یہاں سعید کا کیس ہے، مثال کے طور پہ میں یہ PS 119 کراچی کا کیس ہے، یہ میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ چوری شدہ الیکشن ہے اور چوری شدہ سعید والا اور باقی سب کا مینڈیٹ ہے، اس لیے کہ کاغذات آج میں نے تقریباً 42-45 منٹ ظہیر عباس کھوکھر اس کے کیس کو میں نے پلیڈ کیا اور میں نے کہا میں آپ کو فراڈ بتاتا ہوں۔ ایک ایک حلقے میں وہ جو تارڑ صاحب ہیں انہوں نے تڑ کر کے دھاندلی کی ہے، اور جہاں ووٹ میرا 500 ہے، 514 اس میں سے 500 کاٹ دیا گیا اور 14 رہ گیا، اور جو دوسری طرف جس کے ووٹ 14 تھے اس کو 1450 کیا گیا۔ اس طرز کی اور اس لیول کی جو تیمور آ جائیں یہاں آپ جگہ پہ ملک دھاندلی کی گئی ہے۔ ابھی تیمور ملتان سے آئے ہیں، 107 ووٹ کا فرق ہے، 104 ووٹ کا ان کا فرق ہے، اور الیکشن کمیشن میں جو پچھلی تاریخ تھی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، آج کی تاریخ دی گئی تھی لیکن آج کیس فکس نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو میں نے آج اندر بھی درخواست کی ہے، باہر یہاں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس نظام کو توڑنے میں سہولت کاری کوئی نہ کرے۔ یہ نظام ہے جس میں لوگوں کی رائے ہوگی، چند لوگوں کی رائے نہیں ہوگی، جس میں ووٹرز کی رائے ہوگی۔ آپ لائے تھے دھاندلی کی جب آپ نے امریکہ کے سائفر کے بعد آپ نے دھاندلی کر کے اسی شخص کو بٹھایا تھا، بٹھاتے ہی آپ نے کہا مبارک کو ڈالر 100 روپے کا ہو گیا، مبارک کو اکانومی بحال ہو گئی۔ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کا 22 ماہ میں، اور اب PDM2 سیزن 2 اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے۔ یہ تیسرا سال ہے جس میں ووٹ دینے والے ہار گئے
वोट गिनने वाले वो जीत गए। चंद लोग हैं सिर्फ जो ये सारी धांधली कर रहे हैं, और उसका बड़ा सबब नवाज शरीफ का NRO 2 था। और NRO 2 में लाने के बाद मैंने यहां खड़े होकर आपके सामने कहा था कि आई डोंट सी नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्यों भागा है वो? उसके लिए इक्तदार खानदान में रखना असल बात है। नवाज शरीफ इक्तदार में, उसके घर की सारी खवातीन पार्लियामेंट में, उसके ससुराली बहन भाई पार्लियामेंट में, उसके बच्चों के ससुराली बहन भाई गवर्नमेंट में। तो ये कोई शरीफिस्तान थोड़ा ही बनाया था कायदे आजम अलैहि रहमत ने, ये तो पाकिस्तान बनाया था। और उन्होंने कहा था ये डेमोक्रेसी है, इसको उन्होंने जमहूरिया कहा। उस नर्सरी में से जहराब जहरीली जड़ी बूटियां आज भी इक्तदार के अंदर जड़ें फैलाए बैठी हैं। पाकिस्तान के लोगों ने अपना फैसला जारी कर दिया है। 8 फरवरी को जो अवामी रेफरेंडम हुआ है, उस रेफरेंडम के लिए ना बल्ला था ना बल्लेबाज था, अल्लाह ही अल्लाह था और अल्लाह के बंदे थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़मीनी खुदाओं को मुस्तरद किया सबको, और वोट के जरिए से वो तब्दीली लाए हैं। और जो बैलेट के जरिए तब्दीली लाई गई है, उसको बुलेट के जरिए से अगवाकारी की जा रही है। हमारे MNAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए, हमारे MPAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए। 3 जगह लेजिटिमेट हुकूमत अगर बनती है, आज बने कल बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है, और ये पाकिस्तान के उन लोगों का राइट है बेसिकली जिन लोगों ने वोट दिए। 2 जरूरी बातें और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी वाला माना जाएगा, 9 फरवरी वाला सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। और आपने देखा जो ड्रामा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, नतीजा क्या निकला? वो एक कहता था मैं घसीट के लाहौर की गलियां रंगीन कर दूंगा, कोयटा में घसीटूंगा, पेशावर में, कराची में। वो लेट ही गया है। कोयटा में भी लेटा, पेशावर में भी लेटा, लाहौर में भी लेटा, कराची में लेटा, और लेटे हुए भी उसने अपने हाथ से कमाल की एक चीज नहीं छोड़ी, चेरी ब्लॉसम। वो उसने पक्की पकड़ी हुई है। तो ये जो चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर लाया जा रहा है, इसका सारी दुनिया ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन नहीं, धांधली है। तहरीक इंसाफ कहती है धांधला है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं डकैती है। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं उन सारे लोगों को जो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल रहे हैं कि तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा और तुम भी इसी तरह अकेले हो जाओगे। अभी निकलने वाले हो, तुम्हारे चंद दिन रह गए जो 5 गवर्नमेंट्स लाई गई थी। बेसिकली ये किराए की गवर्नमेंट्स थी, गैर आईनी गवर्नमेंट्स थी। जो ही ये जाएंगी, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है, और धांधली का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगता है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सबसे महंगा पाकिस्तान के खजाने को और पाकिस्तान के लोगों को पड़ रहा है। ये कमीशन इतने पैसे तो कोई पाकिस्तान का दूसरा जो इदारा है जिसका ताल्लुक इंसाफ के साथ है, जिसका ताल्लुक मुसावात के साथ है, जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रल सिस्टम के साथ, इतना महंगा इदारा कोई नहीं है। लेकिन इस धांधली को मैं हैरान हूं इस बात पे, इसका नोटिस लेने के लिए अगर कोई सुओ मोटो हरकत में नहीं आ सकता तो आईन में से सुओ मोटो का इख्तियार खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का इससे बड़ा क्वेश्चन क्या और हो सकता है कि ये 2 वकील खड़े हुए हैं जिनका मैंडेट चोरी हो गया। तो वो जो सारे दोस्त हमारे नारा लगाते हैं काले कोट वाले, तो क्या वही काला कोट जो शरीफों ने पहन के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में वो गए थे जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, उसकी बात हो रही है? बाकी काला कोट किधर गया? इसकी इज्जत, इसकी आबरू और वोट की इज्जत किधर गई? नवाज शरीफ, आपसे जो बदला लिया गया है, कौम ने लिया है। आप तो 2 सीटें नहीं जीत सके लाहौर में, और जो कराची जिनके हवाले किया गया है, उन्होंने कराची को उस हाल पे पहुंचाया जिस हाल पे कराची को हमने जब टेक ओवर किया एज इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम वापस लेके आए, उसका अमन व अमान वापस लाए, उसकी रोशनियां वापस लाए, और आज स्ट्रीट क्राइम का राज है। इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि गुंडागर्दी के जरिए से इक़्तिदार मिलता है। इसके बावजूद हम
आइन का रास्ता अपनाते हैं, हम कानून का और दस्तूर का रास्ता अपनाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का रास्ता वो हमने अपनाया हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों की कमजोरी ना समझा जाए। अगर इन नताइज को तब्दील ना किया गया और अगर जेन्युइन गवर्नमेंट्स ना बनाएंगे तो गवर्नमेंट्स नहीं चल सकेंगी। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में किसी शोबा जिंदगी का कोई ऐसा इदारा नहीं बचने दिया गया जिसमें एक शख्स को और एक खानदान को और चंद लोगों को इक्तदार में लाने के लिए उसको इस्तेमाल ना किया गया। ये इदारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बंद करना चाहिए। थैंक यू। ये तौकीर, मलिक तौकीर, ये पाकिस्तान का वाहिद यंग मैन है स्पेशल लोगों में से। ये दुनिया में आपका रिकॉर्ड है, मेरा तो बड़ा फख्र है ये। सही बात। और आप सबकी ये इज्जत है। इसने हाउस ऑफ शरीफ को हाउस ऑफ शरीफ के अंदर शिकस्त दी है। इसका चोरी शुदा मैंडेट अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही और अब मंडे को इनका मलिक तौकीर का केस सुना जाएगा। हम सारे कहते हैं कि जो स्पेशल लोग हैं उनको कोई माजूर ना कहे, उनको कोई पसमानदगी का शिकार ना कहे। ये वक्त है कि पाकिस्तान का सारा मीडिया और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स तंजीमें, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी मलिक तौकीर अब्बास खोखर का चोरी शुदा मैंडेट वापस करवाने के लिए तौकीर का साथ दें। हम इसके साथ हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा। जो बाबर अवान साहब ने बात की, उसके बाद अपने हल्के NA 148 की कि परसों जिस तरह मैंने आप सब के आगे आके ये कहा भी कि हमारा मामला आज के लिए लगा है दोबारा। आज यानी कि 22 तारीख को NA 148 मुल्तान का हेयरिंग दोबारा फिक्स थी। ओपन कोर्ट में कहा गया, बाबर अवान साहब, शोएब शाहीन, अली बुखारी और सबके सामने कहा गया, लेकिन अभी तक की जो कॉज लिस्ट थी उस पर यह मामला नहीं था। अब मैंने एक तहरीरी दरखास्त दी है कि मामला टेकअप किया जाए। उम्मीद है कि आज ही मामला सुना जाएगा। मैंने अभी मुल्तान से देखा है, हमारे हल्के के ARO भी मौजूद हैं इस वक्त बिल्डिंग के अंदर। लेकिन मैं उससे ज़्यादा अहम बात ये करूँगा कि सुनने में आ रहा है कि गिलानी साहब ये सीट छोड़ रहे हैं, ये सीट छोड़ के वो चेयरमैन सेनेट बनने की तरफ जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब तक वो नोटिफाइड रिटर्न कैंडिडेट हैं इस हल्के के, तब तक तो वो सेनेट के मेंबर ही नहीं हैं। अब वो सेनेट के चेयरमैन कैसे बन सकते हैं? और ना ये उनकी सीट है छोड़ने के लिए। तो उनको फिर किसी ने सही कानूनी मशवरा नहीं दिया। मशवरा ले लें। जब तक वो यहाँ से डी नोटिफाई होके मेरा हक इस हल्के का नहीं मिलता, वो सेनेट के मेंबर के तौर पे जाके चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते और ना ही इसमें बाय इलेक्शन का कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज देखते हैं कि मैटर टेकअप होता है कि नहीं। जो होगा फिर मैं उसके ऊपर मज़ीद तफसील में बाद में बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। रहीम, ये पाकिस्तान की जो पार्लिमानी और आईनी तारीख है और जो सियासी तारीख है उसका 76 साल में दूसरी दफ़ा सबसे स्याह चेहरा सामने आया है। पहला 10 मार्च 1970 था और दूसरा 9 फरवरी 2024 को चेहरा सामने आया है। और उसकी वजह यह है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें कौम ने कैदी नंबर 804 को मैंडेट दिया। कराची का सारा मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और बलूचिस्तान का सारा मैंडेट जिनको मिलना चाहिए था, वहाँ लोकल पार्टीज़, नेशनलिस्ट पार्टीज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे चोरी नहीं किया गया, डकैती मारी गई है। ये पार्लिमानी तारीख की सबसे बड़ी धांधली है और सबसे तवील धांधली है। तवील इसलिए कि आज 2 हफ्ते गुजर गए इलेक्शन हुए तकरीबन, तो अभी तक धांधली जारी है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। दुनिया में मजाक बना दिया गया है और लोगों तक सच पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। कल अमेरिकन गवर्नमेंट फिर बोली है, उसने कहा कि ये जो आप लोगों ने यहाँ पे शुरू किया हुआ है इस वक्त धांधली का एक तर्ज अमल, जिसके ज़रिए से आपने जितने भी पाकिस्तान के अंदर ज़राए हैं, जो ज़राए अबलाग हैं, इज़हारे राय की, आज़ादी की, प्रेस फ्रीडम के जो ज़राए हैं,
وہ سارے کے سارے ذرائع وہ بند کیے گئے ہیں. ٹویٹر بند کیا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اختلافی آوازیں نہ پہنچیں. اسی لیے جسٹس عقیل عباسی جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی بہت اگر گیس نکل رہی ہے, سٹیم نکل رہی ہے, تو پریشر کوکر سے سیٹی بج رہی ہے, اس کو مت روکو. یعنی پاکستان میں بولنے کی گنجائش بہت کم ہے, اور اگر بولتے رہے آپ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف سرکاری سچ لوگ نہیں سنیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پریشر کوکر دھماکے سے پھٹے گا, بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اس سے اچھے طریقے سے, اور پاکستان میں جو بگڑتی ہوئی اور ابتر صورتحال ہے, اس گڑے سلے نظام کے نیچے سے اور اس فرسودہ نظام کے نیچے سے اور اس بےہودہ نظام کے نیچے سے, جس کے ذریعے سے چوری کیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ, اور چوری ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی. یہاں سعید کا کیس ہے مثال کے طور پہ, میں یہ PS 119 کراچی کا کیس ہے, یہ میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ چوری شدہ الیکشن ہے اور چوری شدہ سعید والا اور باقی سب کا مینڈیٹ ہے. اس لیے کہ کاغذات آج میں نے تقریباً 42-45 منٹ ظہیر عباس کھوکھر اس کے کیس کو میں نے پلیڈ کیا, اور میں نے کہا میں آپ کو فراڈ بتاتا ہوں. ایک ایک حلقے میں وہ جو تارڑ صاحب ہیں انہوں نے تڑ کر کے دھاندلی کی ہے, اور جہاں ووٹ میرا 500 ہے, 514 اس میں سے 500 کاٹ دیا گیا اور 14 رہ گیا, اور جو دوسری طرف جس کے ووٹ 14 تھے اس کو 1450 کیا گیا. اس طرز کی اور اس لیول کی جو تیمور آ جائیں یہاں آپ جگہ پہ ملک دھاندلی کی گئی ہے. ابھی تیمور ملتان سے آئے ہیں, 107 ووٹ کا فرق ہے, 104 ووٹ کا ان کا فرق ہے. اور الیکشن کمیشن میں جو پچھلی تاریخ تھی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا, آج کی تاریخ دی گئی تھی لیکن آج کیس فکس نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کو میں نے آج اندر بھی درخواست کی ہے, باہر یہاں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس نظام کو توڑنے میں سہولت کاری کوئی نہ کرے. یہ نظام ہے جس میں لوگوں کی رائے ہوگی, چند لوگوں کی رائے نہیں ہوگی, جس میں ووٹرز کی رائے ہوگی. آپ لائے تھے دھاندلی کی, جب آپ نے امریکہ کے سائفر کے بعد آپ نے دھاندلی کر کے اسی شخص کو بٹھایا تھا. بٹھاتے ہی آپ نے کہا مبارک کو ڈالر 100 روپے کا ہو گیا, مبارک کو اکانومی بحال ہو گئی. بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کا 22 ماہ میں. اور اب PDM 2 سیزن 2 اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. یہ تیسرا سال ہے جس میں ووٹ دینے والے ہار گئے, ووٹ گننے والے وہ جیت گئے. چند لوگ ہیں صرف جو یہ ساری دھاندلی کر رہے ہیں, اور اس کا بڑا سبب نواز شریف کا NRO 2 تھا. اور NRO 2 میں لانے کے بعد میں نے یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کہا تھا کہ I don't see نواز شریف ایز پرائم منسٹر کنٹری. کیوں بھاگا ہے وہ؟ اس کے لیے اقتدار خاندان میں رکھنا اصل بات ہے. نواز شریف اقتدار میں, اس کے گھر کی ساری خواتین پارلیمنٹ میں, اس کے سسرالی بہن بھائی پارلیمنٹ میں, اس کے بچوں کے سسرالی بہن بھائی گورنمنٹ میں. تو یہ کوئی شریفستان تھوڑا ہی بنایا تھا قائد اعظم علیہ رحمت نے, یہ تو پاکستان بنایا تھا. اور انہوں نے کہا تھا یہ ڈیموکریسی ہے, اس کو انہوں نے جمہوریہ کہا. اس نرسری میں سے زہراب زہریلی جڑی بوٹیاں آج بھی اقتدار کے اندر جڑیں پھیلائے بیٹھی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے. 8 فروری کو جو عوامی ریفرنڈم ہوا ہے, اس ریفرنڈم کے لیے نہ بلہ تھا نہ بلے باز تھا, اللہ ہی اللہ تھا, اور اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمینی خداؤں کو مسترد کیا سب کو, اور ووٹ کے ذریعے سے وہ تبدیلی لائے ہیں. اور جو بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے اس کو بلٹ کے ذریعے سے اغوا کاری کی جا رہی ہے. ہمارے MNAs
गन पॉइंट पे अगवा किए गए, हमारे MPA गन पॉइंट पे अगवा किए गए। 3 जगह लेजिटिमेट हुकूमत अगर बनती है, आज बने कल बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है और ये पाकिस्तान के उन लोगों का राइट है बेसिकली जिन लोगों ने वोट दिए हैं। 2 जरूरी बातें और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी वाला माना जाएगा, 9 फरवरी वाला सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। और आपने देखा जो ड्रामा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, नतीजा क्या निकला? वो एक कहता था मैं घसीट के लाहौर की गलियां रंगीन कर दूंगा, कोयटा में घसीटूंगा, पेशावर में, कराची में। वो लेट ही गया है, कोयटा में भी लेटा, पेशावर में भी लेटा, लाहौर में भी लेटा, कराची में लेटा, और लेटे हुए भी उसने अपने हाथ से कमाल की एक चीज नहीं छोड़ी, चेरी ब्लॉसम, वो उसने पक्की पकड़ी हुई है। तो ये जो चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर लाया जा रहा है, इसका सारी दुनिया ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन नहीं, धांधली है। तहरीक इंसाफ कहती है धांधला है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं डकैती है। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं उन सारे लोगों को जो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल रहे हैं कि तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा और तुम भी इसी तरह अकेले हो जाओगे। अभी निकलने वाले हो, तुम्हारे चंद दिन रह गए जो 5 गवर्नमेंट्स लाई गई थी। बेसिकली ये किराए की गवर्नमेंट्स थी, गैर आईनी गवर्नमेंट्स थी। जो ही ये जाएंगी इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और धांधली का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगता है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सबसे महंगा पाकिस्तान के खजाने को और पाकिस्तान के लोगों को पड़ रहा है ये कमीशन। इतने पैसे तो कोई पाकिस्तान का दूसरा जो इदारा है जिसका ताल्लुक इंसाफ के साथ है, जिसका ताल्लुक मुसावात के साथ है, जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रल सिस्टम के साथ, इतना महंगा इदारा कोई नहीं है। लेकिन इस धांधली को मैं हैरान हूं इस बात पे, इसका नोटिस लेने के लिए अगर कोई सुओ मोटो हरकत में नहीं आ सकता तो आईन में से सुओ मोटो का इख्तियार खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का इससे बड़ा क्वेश्चन क्या और हो सकता है कि ये 2 वकील खड़े हुए हैं जिनका मैंडेट चोरी हो गया। तो वो जो सारे दोस्त हमारे नारा लगाते हैं काले कोट वाले, तो क्या वही काला कोट जो शरीफों ने पहन के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में वो गए थे जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, उसकी बात हो रही है? बाकी काला कोट किधर गया? इसकी इज्जत, इसकी आबरू और वोट की इज्जत किधर गई? नवाज शरीफ, आपसे जो बदला लिया गया है कौम ने लिया है। आप तो 2 सीटें नहीं जीत सके लाहौर में, और जो कराची जिनके हवाले किया गया है उन्होंने कराची को उस हाल पे पहुंचाया जिस हाल पे कराची को हमने जब टेक ओवर किया एज इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम वापस लेके आए, उसका अमन अमान वापस लाए, उसकी रोशनियां वापस लाए, और आज स्ट्रीट क्राइम का राज है। इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि गुंडागर्दी के जरिए से इक़्तिदार मिलता है। इसके बावजूद हम आइन का रास्ता अपनाते हैं, हम कानून का और दस्तूर का रास्ता अपनाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का रास्ता वो हमने अपनाया हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों की कमजोरी ना समझा जाए। अगर इन नताइज को तब्दील ना किया गया और अगर जेन्युइन गवर्नमेंट्स ना बनाएंगी तो गवर्नमेंट्स नहीं चल सकेंगी। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में किसी शोबा जिंदगी का कोई ऐसा इदारा नहीं बचने दिया गया जिसमें एक शख्स को और एक खानदान को और चंद लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए उसको इस्तेमाल ना किया गया। ये इदारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बंद करना चाहिए। थैंक यू।